this region, and they are very much eager to install the prototype as soon as we develop. Nature, everyone present here must have thought, I wish I could do something for the environment, isn't it? But due to lack of time, limited resources, and an aversion to strenuous labor, we have just dropped this idea. So, what should we do? Should we stop thinking about our nature, trees, and commemorate and celebrate their special life occasion such as birthdays, anniversaries, weddings, marking that day as very special and planting tree in their designated areas. No poverty, how it is no poverty? Because we are providing jobs and employment to all the communities, agricultural communities, farming communities, and all those who are engaging with us. There is around 2 lakh 50,000 crores, and the gifting industries can be divided into three parts: personal gifting, corporate gifting, and festival gifting. So corporate gifting and personal gifting alone is around $27 billion. Next slide. क्या करना है, क्या सकता है? गिफ्ट इंडस्ट्री प्लेनेट को से बचाना है, क्या करना है कि आम बेचना है, फिर बाद में गिफ्ट इंडस्ट्री में से फिर से चले गए आम के ऊपर, लोग 200 किलो आम होगा ना वो बेचेंगे, एक चीज पकड़ो और उसी पे टिका है. Right. Actually, good morning, sir. Sir, I have just told like Takes more than 1 hour to reach. We can't do anything. Is there anything else you can do? Okay, I will try something. I will call Lifefly. Give me a sec. He's alive. He's alive. Okay, let me. Yeah, doctor this side. Now, you have to first put the patient hands onto the sensor. Do it fast. भैया पीछे कर भैया, मोबाइल को ऐसा करिए दिक्कत. Do it now. Put the patient hand onto Okay, I need to check his blood pressure. Please keep an eye on him. Okay. Yeah, I got the blood pressure. Now, the patient blood pressure is very high. What you have to do is that you have to open the compartment, take out the medicine and give it to him. You have to give him the blue medicine right there. That was rated by the number 1. Let me get that. Okay, I think he is a little better. We'll get him into a hospital. Please get up here. So, guys, what you just see is an example or demonstration of our product named Lifefly Medical Drone. So basically what this drone is that, we know like people live in remote areas or army operates in very like critical conditions like border areas in Assam and Himachal Pradesh and all those areas. And when someone is danger or stuck in somewhere, let's say basic example of Delhi. We know in recent times Delhi got flooded and people are unable to even get out of their houses. So in that condition, millions of people require emergency medical care. On that time, ambulances can't go anywhere. Okay, so I will explain you whole thing about this drone. So मान लीजिए आप एक एरिया में हैं, ठीक है, आपके पास मेडिकल केयर नहीं पहुंच रही है, एम्बुलेंसेस नहीं पहुंच रही है. What you will do? You just have to call ambulance or whatever you have to, you can book it on our app. ये ड्रोन आपके पास आएगा, आपको डायग्नोस करेगा. डायग्नोस का मतलब समझिए, आपका बीपी, शुगर, ईसीजी, all those things that are required by the doctor, वो सारे इसमें रहेंगी. Doctor can just simply guide the patient and वो सारा डाटा डायग्नोसिस का वो ले सकते हैं. After then, doctor can also recommend the patient कि उसको कौन सी दवाई लेनी है, क्या करना है, कैसे करना है, because this has all the required systems that the patient need. Okay? Now, what is unique in this idea? Medical drone तो ऐसा तो है नहीं कि medical drone में कभी सुना ही ना हो. ठीक है, there is medical drone in the market. But क्या वो medical drone है? I'm questioning that. See, जब हम बात करते हैं मेडिकल ड्रोन की ना, इट रेजेस द क्वेश्चन कि व्हाट इज अ मेडिकल ड्रोन. अगर मैं एक वैन लेता हूँ, उसमें कुछ मेडिसिन और ब्लड और ये सब चीज़ें भर देता हूँ और उसको बोलता हूँ पेशेंट के पास जाओ, दैट वैन डिड इट बिकम एन एम्बुलेंस. सेम अभी इंडस्ट्री में हो रहा है कि लोग डिलीवरी ड्रोन्स जो कि मेडिसिन और ब्लड डिलीवर करते हैं उनको मेडिकल ड्रोन समझते हैं. बट मेडिकल ड्रोन का असली डेफिनेशन होता है कि एक ड्रोन विच एज द डायग्नोस्टिक सिस्टम हो, डॉक्टर को सारा डाटा प्रोवाइड करवा सके कि पेशेंट की हालत क्या है. All those things that are available on an ambulance
should be available on the drone. Then it will be a medical drone. So this drone has BP, sugar, ECG, your each and everything that is required directly to the portal जो कि हमने वेब पोर्टल बनाया उस पे अपलोड हो जाएगा. Next slide. So the moment वही किट को बेचो ना, बाकी वाले ड्रोन मैन्युफैक्चरर उसमें फिट करके मेडिकल ड्रोन बना के बेचेंगे. Why you want to become a drone? Final year students of NIT Jamshedpur, and today we are here with a problem. Next slide please. फिलहाल में आप सबने सुना होगा about the incident which took place in Delhi where a girl was brutally murdered in front of the public and no one did anything. पर जहाँ तक हमको पता है वो शायद सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में था. Yes, it was all recorded in a CCTV camera. तो यही प्रॉब्लम है. द सीसीटीवी कैमरास दैट वर मेड फॉर स्टॉपिंग क्राइम, दे आर नाउ बीइंग यूज्ड टू लुक एट क्राइम्स. पुलिस जस्ट लुक एट क्राइम्स और वही वीडियो वायरल होता है तो वो पब्लिक देख के पब्लिक आई में आता है. तो काइंड ऑफ सिंपैथी बन चुका है. So here we are with our problem. Our society is facing security challenges क्योंकि हमारे पास वो intelligent security systems नहीं है जो तुरंत enact कर सकें. How we are gonna do it? The answer to this is simple. There are frameworks and platforms like the CRN and the CNN platforms which offer us frameworks through which we can bring this to real life. The 4 steps are very simple. We are gonna use high definition cameras and edge computing devices. Secondly, we are going to implement computer vision algorithms and machine learning algorithms and training data and transforming the defender into real-time alerting system. So you see the intrusion, क्या होगा? अलर्ट जाएगा सीधा आपके फोन में नोटिफिकेशन की तरह. आप कुछ भी काम करें नोटिफिकेशन आएगा, आप देख रहे हैं. Even if you miss a notification, if you integrate it with the IoT devices, Alexa, Siri, तो वो आपको नोटिफाई कर देगा कि हाँ ये important matter है, that requires your attention. So please यहाँ ध्यान दीजिए. So that is integrating the camera system with the IoT platforms that can help in remote monitoring too. Okay, so let's come. Of course, real-time alerts और license recognition हम सब ने सुना होगा, which do exist, but facilities like gunshot detection, alarm buttons, and इधर कुछ अमेजिंग एंटरप्रेन्योरियल माइंड्स है जो फेल हो चुके हैं एंड नॉट जस्ट इन एग्जाम्स. सो मेरा पहला फेलियर आई रिमेंबर वेरी वेरी क्लियरली वाज इन द 8th ग्रेड जब मैंने एक लड़की को प्रपोज किया एंड उसने रिजेक्ट किया मुझे एंड दैट वाज द फर्स्ट एवर फेलियर राइट ऑफ मी. आई वाज शॉक्ड आउट ऑफ माय लाइफ कि मैं कैसे फेल हो सकता हूँ. You know, I had never failed before, and पहली बार फेल होना is like. नमस्ते, शुभांशु नाम हुआ, श्री साईं बालाजी ग्रुप डायरेक्टर. हर युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि युवाओं को आगे बढ़ने के लिए अभी स्टार्टअप जो नहीं आ रही है उनको फंडिंग करना, दूसरी उसको प्रमोट करना, मार्केट देना, वो बहुत ज़रूरी आपको ये है. आज के समय में बिना मार्केट, बिना फंडिंग और बिना स्टार्टअप के नए कोई रोज़गार नहीं मिलेगी, नई कोई ये नहीं होगी. तो जिसमें झारखंड सरकार से लेके मैं सेंट्रल सरकार तक आपको ये करता हूँ कि स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा अधिक तौर पे प्रमोट करें. मेरा नाम है बीके चतुर्वेदी. गिरिजा फूड प्रोडक्ट्स मेरी कंपनी है और ये शुद्ध अचार बनाती है बिना कलर, बिना केमिकल, बिना प्रिजर्वेटिव्स का, और सरसों तेल में बनता है, धूप में मैच्योर्ड होता है जी. ये अपने तरह का एक अलग अचार है. ये हो गया अचार की बात. ये जो मैं अभी ये जो कार्यक्रम चल रहा है नविष्कार, तो ये नए लोगों के प्रमोशन का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. इसमें कार्तिक जी जो हैं मेरे ख्याल से वो ऑर्गेनाइजर है, तो उनका प्रयास सराहनीय है. वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं नए लोगों को और नए उद्योगपति को आने का भी प्रोत्साहन मिलता है. बहुत बहुत धन्यवाद. तो मेरा नाम
नाम योशिका शर्मा है। मैं गमरिया से हूँ और मैं मेनली रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाती हूँ, कमीशन वर्क्स पे काम करती हूँ। हाइपर रियलिज्म, पेंसिल स्केचेस, एक्रिलिक्स, ऑयल पेंट, ये सब सारे मीडियम्स पे काम करती हूँ। और मैं अराउंड बहुत ईयर से काम कर रही हूँ, बट प्रोफेशनली लास्ट 1 ईयर से काम कर रही हूँ इस फील्ड में। नमस्कार, आज जो प्रोग्राम है वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ भी पिच हुए हैं, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ मिले हैं लोगों को, और उन लोगों को एक गाइडेंस भी मिला है अलग तरीके से किस फील्ड में जा सकते हैं, वो किस वे में काम कर सकते हैं अपना। तो आई गेस ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, और जो सुन रहे हैं, जो ऑडियंस है, उन लोग के लिए तो ऑब्वियसली अच्छा है। श्रेयान, आप युवा एंटरप्रेन्योर हैं और आप एक बेहतर विजन दिया है युवाओं को कि शुरू जीरो से करके बेहतर काम किया जा सकता है। तो आप बताएं कि यहाँ पर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की, जो कि आपको बहुत गंभीरता से सुन रहे थे, तो पूरे झारखंड और पूरे इंडिया के स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि जिससे कि अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखते हुए वो बेस्ट और बेस्ट कर सके एंटरप्रेन्योरशिप में और इंडियन इंडस्ट्रीज में और इनोवेशन में। प्लीज़ कम। तो मैं क्या कहता हूँ कि अल्टीमेटली आप अपना पैशन तो फॉलो करो। जब तक आप अपने पैशन में नंबर 1 नहीं हो जाते, तब तक स्कूल एज अ साइड हसल रहने दो। जब स्कूल को नंबर 2 रखो, अपने पैशन को नंबर 1 करो और उसमें रिजल्ट्स लाओ। जैसे ही रिजल्ट्स ला दोगे, दुनिया आपको रिस्पेक्ट करने लगेगी, आपके पास प्रूफ रहेगा, आपको जो फिर आपको करना है आप वो कर पाओगे। सो ऑल आई एम सेइंग इज follow your passion, be number 1 at it, and don't wait for anyone else to tell you कि हाँ भाई प्लीज़ चालू कर दे, प्लीज़ चालू कर दे। You have to start on your own, किसी का वेट नहीं करना। नमस्कार के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म थी जमशेदपुर में, इसके लिए काफ़ी अच्छा इवेंट है। ऐसे इवेंट्स हम लोग चाहते हैं कि पैन इंडिया हो, हर एक स्कूल में हो, हर एक कॉलेज में हो। सो वी आर गोइंग टू बी पार्टनरिंग विद कार्तिक एंड NIRC फॉर दैट। फ्रेंड्स, श्रेयान एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं कि जो देश का नाम बहुत रोशन किया है, और ऐसे लोग जब तक इस पूरे कंट्री में अलग अलग जगहों से निकल के आएंगे, अनेक श्रेयांस की ज़रूरत है हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचने के लिए और वर्ल्ड का तीसरा इकोनॉमी बनने के लिए। बहुत बहुत बधाई श्रेयान, और आप इंडिया को बनाएं, इंडिया आपको बनाती रहेगी। नमस्कार फ्रेंड्स, नवाचार, इनोवेशन और इस कंट्री को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचाने का एक जज्बा, एक प्लेटफॉर्म। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि मैं जल्द तीसरे टर्म में पूरे विश्व का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनूंगा, तो तभी बन सकते हैं कि जब नवाचार, इनोवेशन और हमारे युवाओं के हाथ में इकोनॉमी आ जाए, उनके हाथ में इंडस्ट्री आ जाए, फाइनेंस आ जाए और वो थिंकिंग आ जाए कि जिससे कि कंट्री के इकोनॉमी को वो ड्राइव कर सके। हमारा भी उसी में से एक चिंतन जो कि मुंबई से हैं, इनका क्या कहना है सुनते हैं आज इस नविष्कार और नवाचार के बारे में। प्लीज़ चिंतन, क्लोज टू चिंतन। थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे युवा के लिए स्टार्टअप का इकोसिस्टम आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे युवा हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं। आपके लिए नवचार एक सुवर्ण अवसर है, जहाँ पे आप अपने आइडिया का विश्लेषण कर सकते हैं, एक्सपर्ट से गाइडेंस ले सकते हैं और आगे आपके आइडिया को डेवलप कैसे करना है, आपकी मार्केट कैसे होगी। आपके ऑलरेडी आपके पास कोई स्टार्टअप है तो उसमें कस्टमर आप कैसे ला सकते हैं, कस्टमर को ग्रो कैसे कर सकते हैं, नए नए मार्केट कैसे एंटर कर सकते हैं। तो ये सारा गाइडेंस लेके हम लोग आ रहे हैं नवचार में, एंड हम लोग बहुत सारी जगह पे यही चीज़ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग जबलपुर, जयपुर एंड जमशेदपुर 3J सिटीज़, जहाँ पे ये विचार को आगे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड ये इवेंट एक सफल इवेंट रहा। इसके बाद में बाकी महीनों में आप देखेंगे तो अलग इवेंट, अलग अपॉर्चुनिटी, अलग अवसर, उसके साथ में हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे और हमें आशा है कि आप हमसे ज़रूर जुड़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू
चिंतन जी, आप क्या कहना चाहेंगे मैम, क्योंकि नविष्कार युवाओं की एक बड़ी थिंकिंग है, बड़ा जोश है और इसके पीछे बड़ी अच्छी टीम काम कर रही है, तो क्या कहना चाहती है प्लीज़? धन्यवाद बहुत बहुत आपका। नमस्कार, हमारा नाम प्रीति चौधरी है और हम मध्य भारत एंजल्स के फाउंडर हैं। जहाँ तक युवाओं की बात कहें तो बहुत सामयिक है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप, जो नवाचार के बीज हैं, वो सीधे स्कूल में ही और उससे भी पहले बल्कि एक पारिवारिक स्तर पर बोए जाएं तो ही वो आगे जाकर एक पौध बन सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमको एक परिवार में रहते हुए अपने बच्चे के भविष्य के लिए सिर्फ डॉक्टरी, इंजीनियरिंग जैसी जो चीज़ें हैं संस्थागत, उनको साथ में रखते हुए, एजुकेशन देते हुए नवाचार और एंटरप्रेन्योरशिप की ओर भी बढ़ना चाहिए। तो परिवार, स्कूल, समाज में बोए ये बीज जो हैं, जब उनका संचरण होता है, जब उनको मेंटरशिप, जब उनको गाइडेंस मिलती है, तो फिर ये यूथ अगर एक सफल उद्यमी नहीं बनेगा तो भाई साहब फिर वो क्या बनेगा। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस तरह की जो ये कॉम्पिटिशन्स हैं, जो स्पर्धाएं हैं, जो इवेंट्स हैं, वो होते रहने चाहिए और कंसिस्टेंटली होते रहने चाहिए, जिससे कि जो आज एक बीज बोया गया है वो आगे जाके अंकुरित हो सके और नवाचार की बयां जो है वो हर तरफ रह सके। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए प्रीति, प्रिया और चिंतन, जैसे इन्होंने कहा 3J, जयपुर, जबलपुर, जमशेदपुर, मैं एक जे और इसमें जोड़ना चाहता हूं, जिनका जन्म दिवस है JRD टाटा, और जो पूरे भारतवर्ष के भारत के रत्न, और उन्होंने इस देश को बिजनेस करना सिखाया। और आज बहुत ही सुंदर अवसर है कि जिससे कि आज ये नवाचार या नविष्कार के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इन तीनों को बधाई देने के साथ इंडिया टीवी ऑनलाइन ये चाहती है कि युवा नविष्कार, नवाचार से जुड़े और भारत के इकोनॉमी को ड्राइव करे, फ्लाई करे और इंडिया के इकोनॉमी को 3rd पोजीशन पे वर्ल्ड में लेकर आए। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।